MCOM Part 2 Semester 4 under Mumbai University NEP. We are doing the subject of IFRS, that is International Financial Reporting Standards. और अभी अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 which is dealing with what? Borrowing cost. Yes, borrowing cost बहुत सुना ना, उसमें भी सुना, AFM में भी सुना, इधर भी सुना, कैपिटल बजटिंग में सुना. What is it? See, if I am borrowing money, is it the only the amount spent for that particular amount which I am receiving is only the interest, या मुझे दूसरी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है, राइट? सो बोरिंग कॉस्ट इज नॉट जस्ट टेकिंग द मनी फॉर द फ्यूचर यूज, it also involves some formalities, it also involves a regular payment of interest. That interest is to be written off. Maybe I am taking a huge amount, for that I am paying a huge amount, again formalities fees. तो वो एक साल में बेनिफिट तो उठा नहीं सकता है ना, उसका मुझे बेनिफिट राइट ऑफ करना पड़ेगा. सो दोज थिंग्स बोरोइंग कॉस्ट के साथ रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बराबर, वो हम लोग डील करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के साथ. बराबर, देखते हैं क्या लेते हैं. पहले लेजर लेते हैं, हाँ वो जरूरी है बाबा, है ना. बोरोइंग कॉस्ट इज दैट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल to the acquisition, construction or production of the qualifying asset forms part of cost of that asset. बराबर, क्वालिफाइंग असेट आपने पार्ट 1 में सीखा हुआ है, राइट. वो असेट जो लॉन्ग टर्म चलता है, जिसको बनाने के लिए टाइम लगता है, तो वो तो मोस्टली लोन पे ही चलता है. तो बोरोइंग कॉस्ट उसमें भी आता है. कैसे राइट ऑफ करे, इस असेट को कैसे एट्रीब्यूट करे, वो देखना जरूरी है. अदर बोरोइंग कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस. बराबर, तो जो कंस्ट्रक्शन के साथ है वो आपका बोरोइंग कॉस्ट बन जाता है, बाकी सब रेवेन्यू बन जाते हैं. करेक्ट. स्कोप, an entity shall apply this standard for borrowing cost. It does not deal with actual or imputed cost of equity, including preferred capital not classified as liability. Okay. An entity is not required to apply the standard to borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of what? A qualifying asset measured at a fair value, for example, biological assets, inventories that are manufactured or otherwise produced in large quantities on repetitive basis. अब पेन की फैक्ट्री में पेन बनती रहेंगे ना, कपड़े की फैक्ट्री में कपड़े बनते ही रहेंगे ना, तो उसके लिए कुछ खर्चा लिया है, वो बोरोइंग कॉस्ट में नहीं आएगा. ओके. What is borrowing cost then? Borrowing cost is interest and other costs that an entity incurs in connection with borrowing funds. Yes, interest on bank overdrafts and borrowings, finance charges on finance lease, exchange difference on borrowing, foreign currency, तो foreign currency transaction हमने देखे है ना, बीच का डिफरेंस हम लोगों ने एडजस्ट किया था. दिस ऑल कंप्राइजेज ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. समझ रहे हो. एक्सचेंज डिफरेंस अब भी बता दिया. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग रेगुलरली. करेक्ट. एग्रीड, प्री एग्रीड एक्चुअली, नो डाउट. एग्रीमेंट के बाद अब जब लोन लेते हो तभी आप, या देते भी हो तो भी आप एग्री कर लेते हो ना कि ये इंटरेस्ट हमारा होने वाला है. So it is the rate that exactly discounts estimated future cash payment or receipt through the expected life of the financial instruments to equal the net carrying amount of financial assets or liabilities. It is similar to IRR, internal rate of returns, IRR. Okay. Qualifying assets, ये भी हमने सीखा हुआ है. वो असेट जिसको बनने के लिए टाइम लगता है, ब्रिज है, सबवेज है, हाईवेज है, राइट. कोई भी चीज, कोई भी बड़ी मशीनरी बननी है तो बड़ी मशीनरी बनाने के लिए भी टाइम लगता है ना. इसरो रोज रोज रॉकेट लॉन्च करता है क्या? नहीं, उसको बनाने में टाइम लगता है, राइट. इट इज एन एसेट दैट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज. एग्जांपल, इन्वेंटरीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, power generation facilities, intangible assets, investment properties, bearer plants. Qualifying assets. Financial assets and inventories manufactured or produced over a short period of time are not qualifying asset. एक साल के अंदर बन रहा है कुछ भी नहीं चलेगा, 3 साल का टाइम अगर लगता है तो वो क्वालिफाइंग असेट है. नॉट क्वालिफाइंग असेट्स कौन? तो फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइंग असेट्स. फाइनेंशियल असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स आपकी, इन्वेंटरीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड, assets that are ready for use or sale. ठीक है, ऑलरेडी असेट बन गया है तो वो कहां से क्वालिफाइंग बनेगा, है ना. क्वालिफाइंग मीन्स इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग. दोज assets are to be considered as qualifying assets. Recognition, जो खर्चा हुआ. Borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying asset. Other borrowing cost.
recognized as an example in the period in which it is incurred. बराबर, एग्जाम्पल उन्होंने कुछ दिया है, एन एंटिटी शैल कैपिटलाइज फॉलोइंग बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन यानी कि खरीदना, कंस्ट्रक्शन यानी कि बनाना, प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन करना, बराबर, ऑफ क्वालिफाइंग असेट एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट. An entity shall recognize other borrowing costs as an expense in the period in which they are incurred. तो अभी ऊपर आया था वही वापस यहाँ पे रिपीट हुआ है. ओके, समझ में आया? बढ़े आगे. बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन. व्हाट? कैपिटलाइज कितना करोगे? पूरा जितना लिया है उतना, कि जितना हो गया है उतना. 1 करोड़ का मैंने लोन लिया, ओके, और मैं 80 लाख का या 1.5 करोड़ का ब्रिज बना रहा हूं. गॉट इट? सर ऐसा कैसा? हाँ, 1.5 करोड़ का ब्रिज बना रहा हूं, 1 करोड़ मुझे मिल गया लोन से, क्योंकि आपको 80% के आसपास लोन मिलता है, बराबर. पूरा 1.5 करोड़ क्यों देगा कोई बैंक? फिर मैं क्या करूंगा? हाँ, जैसे ये ब्रिज बनते जाएगा वैसे सामने वाला मुझे पेमेंट देगा ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, TYV-COM, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाला है. तो इनिशियल स्टेजेस में ही आपको पैसे की जरूरत है, करेक्ट? सो इन दैट केस 1 करोड़ लिया और मैंने 1 साल में 50 लाख का काम किया, और 1 करोड़ में से मैंने 20 लाख ही लोन पे किया हुआ है. तो क्या मैं पूरा 1 करोड़ यहाँ पे 50 लाख प्लस 1 करोड़ करूं, या 50 लाख प्लस 20 लाख करूं? 20 लाख, क्योंकि जितना मैंने पे कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, उतना ही मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं. The borrowing cost that is directly attributable to the acquisition, construction and production of the qualifying asset is that cost that could have been avoided if the expenditure of the qualifying asset had not been made. Okay? When an expenditure is specifically incurred for the qualifying asset, such cost which relates to that specifying qualifying asset can be identified readily. It may be difficult to identify the direct relationship between borrowing costs and capital assets when financing activity of the entity is coordinated centrally. The difficulty may arise when a group uses a range of debt instruments to borrow funds at varying rates of interest and lends it to other entities of various base. एक ही लोन लिया, एक ही असेट के लिए काम आसान हो जाता है, बराबर, लेकिन एक ही असेट बनाने के लिए 3-4 लोन लिए तो साला इसमें से इधर कितना एट्रीब्यूट करूं? बोलो, चाहे साला बोल दिया आइला, पर ठीक है चलता, अभी पार्लियामेंट में बोला जाता है, उसमें क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. ओके, बोरोइंग कॉस्ट, फंड बोरोड स्पेसिफिकली फॉर क्वालिफाइंग असेट, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बोरोइंग लेस इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट बोरोड. 1 करोड़ का लोन लिया ना मैंने, पूरा 1 करोड़ यूज थोड़ी होने वाला. अभी मैंने क्या किया, 80 लाख इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, 20 लाख यहाँ पे यूज किया. अब 80 लाख पे अगर 5% भी पकड़ो तो भी मेरे को 40,000 इंटरेस्ट आने वाला है, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, करेक्ट? हाँ, बट ये इन्वेस्टमेंट परमानेंट नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है. फंड्स बोरोड जनरली फॉर क्वालिफाइंग असेट्स, बोरोइंग कॉस्ट शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग अ कैपिटलाइजेशन रेट टू द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट असेट. ठीक है? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कब से? जब से पहला दिन शुरू हुआ है तब से, या जब मुझे लोन सैंक्शन होके आया तब से? है सवाल, लॉजिकल है. द एंटिटी, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि ये बहुत थियोरेटिकल है. बिगिन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट व्हेन द एंटिटी फर्स्ट मीट्स ऑल द गिवन कंडीशन. क्या है कंडीशन? इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग असेट. It incurs borrowing cost. It undertakes activities that are necessary to prepare the assets for its intended use or sale. Okay. Expenditure qualifying asset include only those which resulted in payment of cash transfers of other assets or assumptions of interest-bearing liabilities. Expenditure is reduced by progress payment received or grants received in connection with assets. Okay. The average carrying amount of the asset during the period including borrowing costs previously capitalized is normally a reasonable approximation of expenditure to which the capitalization rate is applied. Okay, जितना इंटरेस्ट है वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. The activity is necessary to prepare the asset, okay, for its intended use or sale encompass more than physical construction of the asset. है ना, वो असेट जो बन रहा है उसके लिए कितनी सारी और एक्टिविटीज हो रही है.
It includes technical and administrative work prior to commencement of physical construction. पूरा बिल्डिंग बनाने तो बिल्डिंग के पहले कितने सारे एग्रीमेंट साइन करने पड़ता है, ये परमिशन, यहाँ का ये, वहाँ का वो भी खर्चा हो रहा है ना. Such as activities associated with obtaining permits. It does not include the holding of the assets when there is no production or development that changes the condition of the asset. Borrowing costs incurred for the building is held without any associated development activity is not qualified for capitalization. Okay. Suspension of capitalization, जब वो asset बन गया है, बराबर, खत्म. The organization shall suspend capitalization of borrowing costs during extended period in which it suspects active development of qualifying asset. तब तक रोक सकते हो. Cessation, cancellation normally. The entity shall cease capitalization of borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use are complete. सारे काम हो गए तो आप उसको सीज कर सकते हो. An asset is normally ready for its intended use or sale when the physical construction of the asset is complete, even though routine administrative work continue. If minor modifications such as decoration of a property is outstanding, it shows the substantially all activities are complete. When an entity completes the construction of a qualifying asset in parts, each part is capable of being used while construction continues on the other parts. आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन, एक बाजू से पिलर बन रहे हैं, बराबर, दूसरी बाजू वो स्लैब आ रहे हैं, उसको कुछ बोलते हैं बीम, वो आके डाल रहे, ब्रिज आपका पूरा हो रहा है. हाँ, कभी कभी एंटिक ब्रिज तैयार हो जाते हैं कहीं कहीं पे कि ऐसा आ रहा है, बाद में अचानक ब्रिज ऐसा बन रहा है, कहीं कहीं पे 90 डिग्री वाला ब्रिज बन रहा है, वो बात अलग है, बट वो पार्ट्स अलग बनते हैं, यहाँ पे आके उसको असेंबल किया जाता है. तो उधर आप कैपिटल कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ईच part or each small asset comprising the big asset. Okay. For example, a business park comprising of several buildings, each of which can be used individually, is an example of qualifying asset. उन्होंने ये पार्क का दे दिया, कौन सा, बिजनेस पार्क का, है ना, for which each part is used as qualifying asset. 10 बिल्डिंग मिलके एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक बिल्डिंग बन गई तो वो एक उसका क्वालिफाइंग एसेट हो रहा है, 10 नहीं बनी है. Still you can use one, तो one can be seized. उसका हो गया एक बिल्डिंग, चलो इसके ऊपर का अपन कैपिटल खर्चा अभी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, दैट विल बी इन द कॉस्ट ऑफ द असेट, और उसको डेप्रिसिएशन करना शुरू कर देंगे. कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट क्या बोल रहा है, कमेंसमेंट व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ द असेट इज इनकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड, activities that are necessary to prepare the asset for its intended use is in progress. Suspension कब होगा, active development is interrupted. Cessation when all the activities necessary to prepare the assets are complete. Construction of qualified asset is complete. बोला ना मैंने कि बिल्डिंग एक बन गई ना, उसके ऊपर आप क्वालिफाइंग ये कौन सा है वो कैपिटलाइजेशन कॉस्ट मत लगाओ, बोरोइंग कॉस्ट, उसको डेप्रिसिएट करना शुरू कर दो, बाकी 9 बिल्डिंग पे आप बोरोइंग कॉस्ट को एडजस्ट करो. ओके. डिस्क्लोज, यस, सब कुछ बताना पड़ेगा. The entity shall disclose amount of borrowing cost capitalized during the period, capitalization rate used to determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization. Yes. Illustration देख लेते हैं. The cost of raising loan for construction of a plant is capitalized even after commencement of commercial production. Law. Okay. The management argues that it is the correct to capitalize. Do you agree? Even after commencement of commercial production. मशीनरी आप बना रहे थे, उसका कैपिटल कॉस्ट आप यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो मशीन बन भी गई और उसमें प्रोडक्शन शुरू भी हो गया, तो भी आप कैपिटलाइजेशन कर रहे हो, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, बराबर. एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इट इज नॉट करेक्ट टू कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट. व्हाई, द असेट, क्वालिफाइंग असेट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट, सिंपल लॉजिक है उसके पीछे. यस. इलस्ट्रेशन 2 क्या बोल रहे हैं, notes to accounts of X Limited for the year 24-25 include the following: interest on bridge loan from banks and financial institutions on the debentures specifically obtained by the company's fertilizers project amount to 1808000, यानी कि 1,80,80,000, ठीक है.
has been capitalized during the year, which includes approximate of 17 lakhs, 1 crore 70 lakhs 33,465 capitalized in respect of the utilization of loan and debenture money for the said purpose. Okay, is the treatment correct? Briefly comment. चलेगा? नहीं चलेगा, क्यों? आपका पूरा ये कितना है, असेट कैपिटलाइज 180,800 और खर्चा कितना है, इतना है, तो उसके रेशियो में होना चाहिए ना. As per Indian Accounting Standard 23, borrowing cost that is directly attributable to the acquisition, आपने फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का भी डाल दिया है, बराबर. कंस्ट्रक्शन और क्वालिफाइंग एसेट should be capitalized as a part of the cost of asset. Other borrowing cost is recognized as an expense. In case of 17033,456 should have been capitalized, the remaining amount 1046535 should be treated as expense. Okay, एक मिनट. चलो नॉर्मल क्लास में 1.5-2 घंटा बोल लेता हूँ, तभी पानी की जरूरत नहीं पड़ती. गर्मी, आप लोग भी पिया करो. AG Limited has purchased 5 heavy machines on finance lease from MG Limited. AG, OG, LOG, SUNOG, MG. ठीक है, कितने मशीन परचेस किए? 5. All the machines will be used for the whole year of for construction of the factory at Nagpur. ठीक है, no problem. The company will pay 20 lakhs per month as installment. What is the treatment of finance expense? अब ये borrowing cost में गिना जाएगा और क्या ना. As per Indian Accounting Standard 23, finance expense will be included in borrowing cost. इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, उसी मशीन के लिए दे रहे हो जिससे क्वालिफाइंग असेट बन रहा है, तो क्वालिफाइंग असेट में वो कैपिटलाइज होना चाहिए, बराबर. MJ Limited is building a chemical plant. The company has issued 14% debentures of 100 each for this purpose. ठीक है. The fund is used for construction of the plant. Annual interest is 2 crore. माँ कसम 2 करोड़ का तो इंटरेस्ट दे रहा है. हाउ वुड यू डील इट? कैपिटल कर देंगे ना इसको. केमिकल प्लांट बन रहा है, उसी के लिए उन्होंने डिबेंचर इशू किए हैं, उसी से वो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट भी हो रहा है, और एनुअल इंटरेस्ट 2 करोड़ का दे रहे हो, उसी के लिए दे रहे हो, तो क्वालिफाइंग असेट बन रहा है, तो ये कैपिटलाइज होना चाहिए. इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23. Which are the components included in borrowing cost? Finance charges paid under finance lease, हाँ होता है. Amortization of discounting rate of borrowing, ये भी होता है. Commitment charges on borrowing, ये भी हुआ था, और all the above ही आएगा. तो reading carefully will matter a lot. Under Indian Accounting Standard 23, an enterprise needs to disclose what? Accounting policy adopted for borrowing costs, हाँ. Borrowing costs capitalized during the year, हाँ. Both 1 and 2, हाँ. Capitalization formula, ना. Which are to be disclosed? 1 and 2, both. ठीक है. On 24th April 24, JLC Limited obtained a loan from the bank for 50 lakhs to be utilized as under construction of shed 20 lakhs, ठीक है. Purchase of machinery 15 lakhs, working capital 10 lakhs. Purchase of machinery रेडीमेड आ गई है, वर्किंग कैपिटल धंधा चलाने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड बन रही है, बराबर. On 34, advance purchase for purchase of tax 5 lakhs. On 31st March 25, construction of shed was completed. Okay, no problem. And machinery installed. Delivery of the truck was not yet received. तो delivery of truck आने वाली है. Total interest charged by the bank for the year was 9 lakhs. Show the treatment of interest under Indian Accounting Standard 23. अब शेड कंप्लीट हो गई है, हाँ हो गई है, बराबर है. तो 9 में से 9 लाख का इंटरेस्ट पे हुआ है. शेड की वैल्यू कितनी है? 20 lakhs. उधर इन्वेस्ट हुए हैं. टोटल बोरोइंग कितनी है? 50 lakhs, बराबर है. सो 3.6 की कैपिटलाइज होगा, करेक्ट. मशीनरी परचेज की है, लेकिन डिलीवरी आई है क्या? नहीं, नो. मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट है आपका. तो 9 इंटू 15/50 दैट इज 2.7. वर्किंग कैपिटल आप यूज कर रहे हो, जब अभी शुरू होने वाला ना, बिल्डिंग कब बनी? 31 मार्च को, यानी कल से शुरू होने वाला है ना अपना प्रोडक्शन, या वर्किंग कैपिटल तब से लगने वाला है. तो 9 इंटू 10/50, बराबर, वो आ गया. एडवांस आपने दिया है ट्रक का
9 इंटू 5/50, ट्रक आया ही नहीं अब तक, बराबर। तो एक कैपिटलाइज सिर्फ यही होगा, बाकी ये सारे पीएनएल में चले जाएंगे, बराबर। तो 3,60,000 कैपिटलाइज हुआ, बचा 5,40,000 आपका पीएनएल में गया, समझा? यस। रेनबो लिमिटेड बोरोड अ फंड ऑफ 1,150 crores, माँ कसम, इतना अमाउंट बोलते बोलते मेरा तो थता पपा हो जाता है, सामने देखूंगा तो पागल हो जाऊंगा मैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट, कब लिया है? 1 April 24 को, एट 11% रेट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years, ओके। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%, बराबर। The accountant of Rainbow Limited capitalized interest of 19.5 crores for the accounting period of 31st March 2025. एक साल का उसने 19.5 करोड़ इंटरेस्ट पे किया है, कैपिटलाइज कर दिया है। ड्यू टू सरप्लस फंड ऑफ 150 crores of an income of 350 crores was earned and credited to P&L। तो ये आपका इनकम है, यानी एक्सपेंस को उतना कम कर देगा, बराबर है। कमेंट ऑन द अबाव विथ रेफरेंस टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप कितना पे कर रहे हो क्या पता, 150 करोड़ का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 11%, यानी 150 करोड़ पे 11%, 11 15 165, 16.5 करोड़ आप देने वाले हो, और यहाँ पे कमाया कितना है? 3.5 करोड़, यानी कि 13 करोड़ का ही अपने को हिसाब बताना पड़ेगा। As the company has borrowed 150 crores for the construction of the boiler plant, it is specific borrowing as per Indian Accounting Standard 23. In case of specific borrowing, the total amount of borrowing costs incurred during the period less any income on the temporary investment on borrowing capital is to be capitalized. Interest cost is capitalized 16.5 minus 3.5, that is 13 crores. The interest on 3.5 crores cannot be shown as income क्योंकि आपकी वो non operating income है। It should be deducted from the interest cost of the incurred for the purpose of capitalization। समझ में आ रहा है? यस, इसको जाने दो, ये भी नॉर्मल सा ही है, जहाँ कैलकुलेशन होगा वहाँ पे समझना जरूरी। आई होप यू आर एबल टू डाइजेस्ट थिंग्स। आई नो वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन देखो अभी एग्जाम को आपके बच्चे हैं कम दिन, बड़ा, और हमें भागना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके लिए ये वीडियो बड़ा बनाया। इसके बाद वाला भी बड़ा है और सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, दैट्स द ओनली रीज़न थोड़ा सा बड़ा बनाया। ओके, सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, इंटरैक्ट करो, 2 उंगली की एक्सरसाइज, 1 उंगली की एक्सरसाइज, लाइक शेयर कमेंट, ये सारी चीज़ें किया करो। चैनल अपना काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप लोग जो शेयर कर रहे हो उसकी वजह से यूट्यूब ने भी अपने वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही चालू रखते हैं काम, समाज सेवा के लिए आप लोग भी कॉन्ट्रीब्यूट कर